Audio Jungle. Audio Jungle. Made the defense of democracy the sort of centerpiece of his administration. It just so happens that right now there's also not just threats to democracy by dictatorships and autocrats, but also illiberal democracy as well. Yeah. He has called the president of China a dictator, and they're sticking with it. He is also hosting, as we speak, the Prime Minister of India, Modi, who is considered autocratic or at least illiberal Democrat. What is the point, I guess, or how should a president engage with those kinds of leaders, either in the naming of them or in the dealing with them? Look, it's complicated. The president of the United States has a lot of equities. And when I was president, I would deal with figures, in some cases who were allies, who, if you pressed me in private, do they run their governments and their political parties in ways that I would say are ideally democratic? I'd have to say no. You want to name names? No, of course not. But you had to do business with them because they're important for national security reasons. There are a range of economic interests. I dealt with China to get the Paris Accords done. I dealt with Modi to get the Paris Accords done because I think climate change is something that transcends any particular momentary issues. It's a problem that humanity's got to deal with over the next several decades in a serious way. I do think that it is appropriate for the President of the United States, where he or she can, to uphold those principles and to challenge, whether behind closed doors or in public, trends that are troubling. And so I'm less concerned about labels than I'm concerned about specific practices. I think it is important for the President of the United States to say that if you have Uyghurs in China who are being placed in mass camps and re-educated, quote unquote, that's a problem. That's a challenge to all of us, and we have to pay attention to it. I think it is true that if the President meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. And by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right, because the world is complicated. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाराक ओबामा ने जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये कांग्रेस से खिताब करने लगे थे, उससे थोड़ी देर पहले क्रिस्टीना मानपोर CNN ने इंटरव्यू एक बाराक ओबामा का किया, जो कि मोदी साहब के देरीना दोस्त हैं। और इस दोस्त ने 2015 में जब हिंदुस्तान आए थे तब भी ये मशवरा दिया था, और 16 में जब ये खुद अमेरिका गए तब भी ओबामा ने उनको यही मशवरा दिया था जो आज 2023 में उन्होंने इनको दिया। तो दोस्त वही होता है जो चिकनी चुपड़ी नहीं, मीठी मीठी नहीं, बल्कि सच्ची बात मुंह पे कहे और बताए और एहसास दिलाए। और हस्बे रिवायत आपका गोदी मीडिया चल पड़ा, उसका DNA मुसलमान बना दिया, और उसकी बात को सुनने के बजाय आप ही कहते हैं ना कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो भाई अंडरस्टैंड तो करो कि वो क्या कह रहा है। क्या वो हिंदुस्तान के मफाद की बात की? कड़वी गोली दी, कड़वी गोली का असर मीठा होता है भाई। तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बाराक ओबामा ने जो बात की है, क्या बाराक ओबामा ने पहली बार की है? नहीं, बरसों से वो किए चले जा रहा है। क्या ये बात जो बाराक ओबामा ने की है, क्या किसी और ने नहीं की? क्या हिंदुस्तान का हर दूसरा दानिश्वर, कोई रिटायर्ड डिप्लोमेट, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट यही बात नहीं करता? क्या ये मुल्क के लिए नंबर 1 इशू नहीं था, जो आप जिस मुद्दे पे नाकाम हैं और जिस मुद्दे को सुनना ही नहीं चाहते? आपका मीडिया, आपकी आवाम को कोई बात ये करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके फ़ौरन लत्ते ले लिए जाते हैं। अगर ये बर्निंग इशू, इम्पॉर्टेंट इशू आपका नहीं है,
तो मुल्क की दूसरी बड़ी जमात कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे भारत जोड़ो वॉक क्यों की? जोड़ने की बात उस वक्त की जाती है जब कोई चीज़ टूट चुकी हो। सोच बेअक्ली का ख्वाब जिसकी कीमत ये खित्ता एक मुद्दत से दे रहा है और आगे भी देगा अगर इसी ख्वाब पे आप चलते रहें। सूरत हाल कुछ भी हो, आपको चारों तरफ से, मैं यहाँ खित्ते के किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, किसी का जिक्र नहीं करूँगा, मैं अमेरिका आपके जो इस वक्त बहुत बड़े मित्र हैं जो वहीं से बात करूँगा जहाँ इस वक्त सोसाइटी में बहुत शिद्दत से बात की जा रही है। एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कि नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. क्या क्या अलकाबात दे चुका है। बर्नी सैंडर ने आपको बारहा समझाया कि हिंदुस्तान के तयशुदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, इसके उन मुद्दों को मत छेड़ो जिस मुद्दे पे ये मुल्क बना हुआ है, जिस मुद्दे पे ये यूनियन बनी हुई है, और वो यूनियन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है। वो मजहबी इंतहा पसंदी से हटकर लोगों की बिला मजहब, रंग और मिल्लत के, जिसके ऊपर आप भाषण देते रहे कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है। जब आपसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की साफ़ी ने एक सवाल किया 9 सालों में, एक सवाल आपको भारी पड़ गया, आपसे जवाब नहीं बन पाया, आपने पूरा पटना से लेकर और आपने द्वारका तक, द्वारका से लेकर आपने अमृतसर और अमृतसर से लेकर कन्याकुमारी तक की सैर करवाई, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि आपने मुल्क में अक़लियतों के लिए क्या किया है और उनके हकूक़ के लिए आपने बुलडोज़र के अलावा क्या बंदोबस्त किया हुआ है। बुलडोज़र बाबा का बंदोबस्त तो आपने किया हुआ है, उसके अलावा आपने क्या किया हुआ है। बर्नी सैंडर्स भी आपको कई बार समझा चुके हैं कि आप अपने मुल्क के उस वादे को मत तोड़िए जिस वादे पे गांधी जी ने और आपके दीगर नेशनलिस्ट ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक संविधान बनाया और उसके ऊपर सब ने भरोसा करके आप इस दिल्ली को के आगे सबमिट किया, और तमाम मणिपुर, नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर और पंजाब तक, पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा तक की तमाम अकाइयों ने, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ कल्चर ने, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने दिल्ली के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दिया कि ठीक है, हमें इस संविधान पे, इस आइन पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है और दिल्ली की पार्लियामेंट, इसकी डेमोक्रेसी इसकी हिफाजत करेगी। लेकिन आज कहाँ हैं? आपको सही मशवरे दिए जा रहे हैं, आप उस पर तवज्जो दीजिए। ये 3 लोग कम से कम ऐसे हैं जो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के दोस्त हैं, और दोस्त जो मशवरा दे उस पर तवज्जो देते हैं, ना कि उसको। जॉर्ज सोरोस बेचारे ने आपको मशवरा दिया तो आपका मीडिया उसको जो है इवल एलीट का नाम दिया। मतलब मोदी के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता, कोई ज़बान नहीं खोल सकता, इजाज़त नहीं है। हक़ की बात करने की किसी को इजाज़त नहीं है, क्योंकि मोदी साहब तो ठहरे भगवान, और भगवान के ख़िलाफ़ तो कोई बात भी नहीं कर सकता।
तो ये अगर इस तरह की सोच अगर सोसाइटी में मौजूद है, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ये अभी राष्ट्र नहीं बना, ये अभी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। अब बना दीजिए राष्ट्र, जो मर्जी चाहिए कीजिए, मज़ा चख लीजिए उसका भी, और तब आपका एहसास होगा कि आपके साथ रहने वाले कितने करोड़ बाकी रह जाते हैं। आपके खुद आपके धर्म के लोग आपके साथ नहीं हैं इस मुद्दे पे, जिस रास्ते पे आप चल निकले हैं और जिस रास्ते से आप वापस हटना नहीं चाहते, और जो रंग ढंग से आपने नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को इस पर शर्म है। खित्ते के इलाके के जो दीगर ममालिक हैं उनको तो गुस्सा है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। आप खित्ते के बड़े मुल्क हैं, आप बड़े भाई हैं, आप बड़ी अक्सरियत हैं, माजी में आपका एक नाम था। I believe क्या that कहा इनने ये भी बता दीजिएगा। investigating in a girl child lifts up the entire family. Nearly 400,000 miles of political fiber. When I was here in 2016, I said that our relationship is